How's the spiritual Josh? Fine. Everyone, very, very good morning. We have this. Now is it audible? Yeah. So, welcome everyone. Good morning. Jai Jinendra. And first of all, सभी तपस्वियों को खूब साथा पूछते हैं हम. इस बार इस सिंगापुर धरती पे we have got so far 46 tapasyas going on. It is really heartwarming, and that just shows the energy and the atmosphere which the Sangh and everyone, each of the Shravaks and leaders have created in the Sangh this year. I'll just take this opportunity to invite Shri Kenil Bhai to just give his opening remarks for this session today morning, and then we'll take start. Jai Hind. जय हिंद. पर्युषण महापर्व અને સિંગાપુરની ધરતી પાવન થઈ ગઈ. We feel so blessed to have amongst us such spiritual leaders who have spent time, who have just with the power of giving us. सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव श्री ने वंदन. पूज्य समनी जी, भाविता प्रज्ञा जी, पूज्य समनी जी, संघ प्रज्ञा जी ने भावपूर्वक वंदन. पूज्य आत्मा राजू जी ने भावपूर्वक वंदन. श्री जयंतीलाल जी, आपको भी भावपूर्वक वंदन, नमस्कार. We also have Shri Sanjay ji, who is going to be with us very soon. Sanjay ji, in fact, just landed this morning, and he's on his way now. We decided to go ahead with the program, but we'll welcome him as well very soon. As I said, our Jain community in Singapore is very small, and when it comes time like this to celebrate a Mahaparva, it gives us so much of pride and joy to have everybody come together and celebrate this as one Jain, one family. On behalf of Singapore Jain Religious Society, a very warm welcome to our spiritual leaders and the speakers who graced this occasion wholeheartedly and accepted our invitation. So thank you so much. Thank you so much, Samni ji. Thank you so much, Raju ji. Thank you so much, Jayantila ji. हमारा सिंगापुर संघ भाव is always to see opportunities in how we can bring the diverse groups of all the Jains together. And no better way, no better time, no better opportunity to grab this and have all of you celebrate this day with us. We can't celebrate the 9 days, we understand the differences. However, this is our effort, this is our ahobhav and our vinay to invite you. And so gracefully you all accepted the invite. Thank you once again. Without further ado, I'll hand over the program to Sandeep Bhai, who will take us through some very beautifully curated tasks, program activities which will help us to grasp and learn. But more importantly, I wanted to just highlight Paryushan, a parva of forgiving, a parva of shamapna, a parva that helps us to do inner work on ourselves and strive for inner transformation. We as mumukshus and sadhaks try our level best because we know that you have tried your level best in giving us all these, you're like પીરસો તમે અમારી પાસે આટલું સરસ મજાનું સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં પીરસો છો. ભગવાન મહાવીરની વાણી જે સ્ક્રિપ્ચર્સમાંથી ગુરુદેવ શ્રી આટલી સિમ્પલ રીતે અમને સમજાવ્યું છે, ઈ જ સિમ્પલ વાણી સ્ક્રિપ્ચર્સની આપે અમારી સામે પીરસી છે. And we feel so proud that you are
helping us to understand, and you're helping us to realize how we can grasp it and how we can internalize it for our own benefit, for our own kalyan. Thank you once again for gracing this time. And I hand over we should invite Samnijis and Pujishri, Rajiji and Lalji, please on the stage. Program is about. Thanks, Kenal Bhai, for that excellent instructions. We'll get going with today's morning program. The whole concept is we are attempting something which is very unique, and this is the first time we are. Yeah. Okay. So we get to experience diverse minds also, just like we are getting the diversity here. So, without further ado, I'll just do the brief introductions for the honorable speakers here. Starting on the left, we have they come from, they are the Samantra Varga. They are from the Tirapal Sangh, which is under the Anuyai of the Mahaprajna Acharya Shriji, and their headquarters are in Jain Vishwa Bharati in Ladnu, and their centers are spread all over the world.
and the Shaman Shreni have give us the opportunity of getting the Bodh Vachan of Mahavir Bhagwan and the Acharya Shri across the various teachings which they do across the world. Then we have the first, which is Samanji Bhavit Pratyaji, as what Tenal Bhai had also mentioned. She has taken Diksha under Sri Acharya Tulsi Muni Ji in year 1983 in Ahmedabad. And Vandami has after that done, in terms of the Jainism and science of living, she has done an MA in that. और उसके साथ साथ में उनका एक्चुअली संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, राजस्थानी में भी बोध वचन है। और उसके साथ साथ में उन्होंने धर्म प्रचार के लिए she has traveled to almost 29 countries all over the world, including US, UAE, UK and all the other locations, and also Singapore has that opportunity. And one of the other countries which I saw was also Bhutan, which is very unique, like it's the global capital of world happiness. And also somebody has that opportunity. And then she has अपने चलते काफी किताबें भी लिखी हैं. A few examples are Jain View of Life, Modern Lifestyle, Problems and Solutions, Articles on Management. And आप काफी regularly speaker भी हैं on various events at an international level and a national level, which is the World Peace Prayer, Vishwa Hindu Sammelan, and World Religious Leaders Conferences. So again, Samanji, thanks a lot for gracing this occasion. Then we move to the next Samanji, which we have the opportunity today with us. आप हैं समन संज्ञ प्रज्ञा जी. आप ने आपकी दीक्षा युवा आचार्य महाप्रज्ञा जी द्वारा सन 1992 में ली गई थी और आपने जैन फिलॉसफी में एमए किया हुआ है और आप भी प्राकृत भाषा, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थानी और इवन बंगाली में निपुण हैं और आप भी उन सारे भाषाओं में करते हैं. और उसके साथ साथ में आपका भी काफ़ी प्रयास और कंटिन्यूस हमारे को साबित मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, नेपाल एंड भूटान. और आप भी चलते वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस और जैना कन्वेंशन और दूसरे सेमिनार्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं. तो आपका खूब खूब अभिवादन आपको बताने के लिए. Then we'll move to the left. We have Atmarpit Raju ji, who's also the SJRS Sangh leader for Pradushan this year. आपने 1996 में आत्मर्पित की दीक्षा ग्रहण की थी श्री पूज्य गुरुदेव राकेश भाई के कमलों द्वारा और आप तब से ही उसी मार्ग पे प्रदर्शित हैं और आपने आध्यात्मिक विकास और निस्वार्थ सेवा करने को अपना पूरा जीवन समर्पण किया हुआ है. आप के स्पेसिफिक 2016 में पूज्य गुरुदेव ने इनके नाम के आगे जी का सफिक्स लगाया था जिसका कि महत्व होता है कि उसमें उन्होंने और भी ऊंचे व्रत लिए अपने साधना के प्रति और उसी लिए हमें खूब खूब हम आपका आत्मर्पित राजू जी एक बहुत ही स्पेशल प्रवक्ता हैं और हमें एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रड्यूशन आल्सो वी हैव लर्नड समथिंग न्यू which for the people who have attended it, like try to speak IB style. So that's the first experience which I have also had. हमने experience किया है to have that interactive style of learning and teaching which we have learned from him first time. So thank you again once again for giving us that opportunity. और आप भी चलते across all 5 continents में visit करते हैं and lectures देते हैं. And across 55 countries उनका बोध वचन सुना जाता है. आप ईयर 2011 से जो मिशन की जो मैगजीन है मंथली मैगजीन सदगुरु एको उसके सब एडिटर भी हैं और साथ में आप सेवा प्रदान भी कर रहे हैं और आप श्रीमद राजचंद का जो धर्मपुर आश्रम है वहाँ पे विराजते हैं. So once again, very much. Then he moved to Dr. Jayanti Lal ji, जो एक
प्रोफेसर हैं और आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ इधर हैं। आप प्रोफेसर हैं जैन दर्शन मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूपी में से, और आपने पीएचडी की है जेनोलॉजी में फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई। आप पीएचडी हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी इन यूएसए, और आपने एमए भी किया हुआ है इन इकोनॉमिक्स एंड ही इज अ गोल्ड मेडल होल्डर इन दैट आल्सो। आपके द्वारा जैन धर्म की काफी पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है बाय द मद्रास यूनिवर्सिटी। To name the few of them are on आचार्य कुंतकुंत का जैन दर्शन, अहिंसा पे, करुणा पे, और शुद्ध आत्मा और उसके अन्य खजाने, समय सार का सार, सलनेखला का सार, प्रवचन सार, नियम आसार, और ये काफी बुक्स इनकी पब्लिश हुई हैं। और आप आजकल भी डे टू डे में भी आप बहुत एक्टिव हैं टू एक्चुअली encourage PhD students and act as a guide for PhD students who are doing in genealogy. आप काफ़ी रेगुलर मैगजीन्स और जर्नल्स में भी जैन विषय में लिखते रहे हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं। और हमारा ये सौभाग्य भी है कि आपके छोटे सुपुत्र इज बेस्ड इन सिंगापुर, सो दैट्स व्हाई वी गेट अ डबल एडवांटेज। Yeah, and his elder son is taking care of the temple in New Jersey. Whole family is devoted to and committed to spreading them. Then we have actually, as what Kenal Bhai mentioned, Brahmacharya ji, Sanjay Bhaiya ji, who's also in Singapore, but he just landed from Mumbai today morning and his flight got slightly late. So he'll be joining with us in few minutes the moment he comes from the airport. But आपके बारे में just मैं थोड़ा सा brief introduction दे देता हूँ ताकि when he joins us on the stage we all know what he is. आप बॉस्टन जीवाजी और हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, एंड आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, और साथ में आपने एमए इन जैन दर्शन भी किया हुआ है। Again a very unique combination. Computers with Jainism, computers with economics. Raju ji is from production engineering. So we have the excellent opportunity to combine those things and imbibe what all these learned gurus are going to tell us today. Sanjay Bhaiya ji has been associated with Sri Vidyasagar ji since year 2000. उन्होंने पहले प्रथम दर्शन का 2 साल का व्रत लिया था तब, उसके बाद में 2005 में उन्होंने 2 प्रतिमा का और व्रत लिया, 2006 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, फिर 2010 में 7 प्रतिमा का व्रत लिया, और उसके उपरांत वो आप शिरोमणि गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनुयायी हैं वहाँ पे, और आप चलते इंटरनेशनली सब जगह पे जाके बोध वचन प्रदान करते हैं, कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विधान करते हैं, और आपने आजीवन काल का आशीर्वाद इस मार्ग पे चलने के लिए आजीवन शक्कर का त्याग किया हुआ है, चटाई का त्याग किया हुआ है, और एकासन का नियम और अनेक प्रकार के चारित्र अंगीकार को उन्होंने अर्पण किया। अगर कुछ भी बोलने चुकने में कुछ हो गई है तो क्षमा भी because the learned speakers are so great that there are, when I read also them, some of those things come up, and let us all get on that path someday. And the beauty of इन सब में चीजों में सबसे important चीज है the coexistence. That's the key takeaway for a lot of us, that when we are in the commercial or the material world, the spiritual journey can coexist. That for me was also a personal takeaway, as what Raju ji had said. Every time we are doing some chintan, what is my takeaway? So that was my takeaway from this brief opportunity. Now, just to share, हम लोग एक्चुअली जो जैन संगम क्षमा और संवाद पे जो हमने आज का कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है और हमारा एक प्रयास है, उसमें हम चाह रहे थे कि कुछ अलग करें. And also, as I mentioned earlier, Raju ji had mentioned a word which is there should not be any cross ventilation.
So we want to make this as interactive as possible and get everyone's engagement. And apna khud ka chintan ho and have the opportunity of interacting with the learned speakers. So for that, I would just like to invite our youth team Mobile to take over the next part of the program. And in this part of the program, this is one section where it is okay to use the mobile. Just to give you the cue. Jai Jinendra. I think it's a blessed opportunity for the entire Sangh to have 5 learned speakers and leaders in our presence to celebrate the Paryushan Mahaparva. And in my opinion at least, there's no better way for us to learn from them. And the only way we can do that is through interaction. ID style. So for that, I would like to request everyone to just take out your mobile phones and scan the QR code on the screen. This is going to lead you to a Mentimeter website. So this is meant for question and answers, and this is what the kids use these days. So take some time to scan the QR code on the website. For those who need help, I'm sure there's lots of us around who can help you. So how this is going to work is that, we have all experienced and seen fireside chats. This is a moderated version of it. So I'm actually supposed to speak in English, Gujarati and Hindi, so I'll try my best to explain in all 3 languages. Gujarati માં આને કહેવાય ચાય સાથે ચર્ચા. અને usually આ ચર્ચામાં મસાલો બહુ આવતો હોય. But we'll have it moderated. We'll have questions that all of us can answer. I would like to emphasize that none of the questions have a right answer. We're here to share perspectives, Anikantwad, so multiplicity of views. And how we're going to put the speakers on the spot is by allowing them to share some insights on the responses given by the audience. But I follow it now. Okay. So are we okay? Have we been able to scan the QR code? Yes. He is coming. Okay, I think we might have. You press that. I think you know what? Touch the. Very warmly, very warmly welcome you on behalf of Singaporean Religious Society. Thank you so much for coming straight to the startup from the airport, and he's taken a red-eye flight, and you can imagine how restful he may be, but he's so calm, and he's straight here to the startup. So thank you once again. Jai Jinendra. So what we're trying to do here, Sanjay ji, is सबने QR code scan किया है, and there'll be questions on the QR code for which people will give answers. Moving, before we go ahead, I think you should give a good picture about what we are going into. Because, see, we may be familiar, especially you are from the youth, so you know what is all this. But what does fireside chat mean? And what is the purpose of this chat? How it helps us? So, means how you have woven the questions into this. So give a little brief idea of what is fireside chat. Because see, many of them may be experiencing this form of session for the first time in their life.
So even partly me also. so it's better that you give them a little bit of an idea okay, how we are heading towards the discussion about it. So the questions that we have framed are very relevant questions in our day-to-day lives. For example, in a particular situation, how would you react? And there are options A, B, C, D. So as I mentioned earlier, there are no right or wrong answers. What we are trying to see is the different perspectives of how each of us would react in a situation. And so, हमारा ये प्रयास रहा है कि हम ये फायर साइड चैट का एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम क्योंकि इधर काफ़ी लर्नड स्पीकर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और हम अपने अपने अलग इसमें अलग अलग आध्यात्मिक जर्नी पे हैं हम लोग का। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रस्तुत किए हैं जिसमें कि आपको अपनी तरफ से आपके अनुसार जो सबसे सही उत्तर, they are not looking, this is not like fasted finger first या कौन बनेगा करोड़पति, this is going inside करोड़पति. So this is where there is no prizes for getting the right answer. This is making aware of based on the questions which are put in, आपके प्रति आपको जो उसमें सबसे सही लगता है आज जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके हिसाब से आप उसका आंसर दें और फिर उस आंसर्स के बाद में एज अ पार्ट ऑफ द फायरसाइड चैट हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे लर्नड स्पीकर्स आज यहाँ पे हैं वो उस पर थोड़ा विवेचन करें ताकि हम जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो हमारे हैं अनेकांतवाद जो हमें हैं इन काफी चीजों के प्रति उसका हमें एक सही मार्गदर्शन का एक प्रयत्न है हमारा। So, इनका ये जो प्रयत्न है प्रयास है वो एकदम हटके है क्योंकि अब तक हम क्या करते आए हैं कि कोई वक्ता है वो बोलता है वो अपनी बात सुनाता है हम सुनते हैं। सो फायर साइड चैट ये जो हिंदी इंग्लिश का वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग ऐसा होता है कि शाम को अपने अग्नि लगाई है और फिर सब पता है गांव में उधर बैठते हैं सब आजू बाजू में लोग बैठते हैं और बैठ के क्या करते हैं गप्पे लड़ाते हैं। तो गप्पे को इंग्लिश में बोलते हैं चैट। सो ये जो है तो ये माध्यम से इसमें क्या होता है कि इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी क्या सोच है वो आप पुट अप करेंगे उसके ऊपर से तो कुछ क्वेश्चन आपको आया तो यहाँ पे जो बैठे महानुभव है वो अपना जो निचोड़ है जो मोती है ज्ञान के वो आपको शेयर करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी बहुत सरल पड़ेगा आपको समझाने में। ठीक है सब समझ गए गुजराती लोगों को समझी गया मैंने को કીધું કે હિન્દી ગુજરાતી વાળા સમજશે મેં કીધું કઈ રીતે હિન્દી પિક્ચર જોતા હોય ને એટલે મેં આવડે। And the idea for the charcha came from because Modi ji was in Singapore, so he had started this chai pe charcha, so we took the cue from there and converted it to this model for spirituality. Go ahead. So are we all okay with the Mentimeter? Yes. Okay, can we have the first question? So which Jain value do you think Shamapna, forgiveness, is most closely related to? તમારા વિચારમાં ક્ષમાપના કયા જૈન વેલ્યુ સાથે સૌથી વધુ સંબંધિત છે? आपके अनुसार क्षमापना किस जैन वैल्यू से सबसे अधिक संबंधित है? A. अहिंसा, नॉन वायलेंस। B. अपरिग्रह, नॉन possessiveness। C. सत्य, truthfulness। and D. brave, love। So in your day-to-day lives, which of these following values relate to Shamapna the most? So you can click on the option in the phone and it should be able to send your answers and responses to us. Again, there is no right or wrong answer. So इसमें क्या है आप फोन पे जो ये डाउनलोड किया है ना वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आंसर और इधर तो बहुत सारे लोग बैठे हैं हमको तो पता नहीं है। सो वो जो आप मोबाइल में डालेंगे ना तो यहाँ पे पता चलेगा कितनों ने अहिंसा में सिलेक्ट किया है कितनों ने अपरिग्रह में किया है उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि कितने लोग किस चीज को मायने देते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं राइट। सो आपके फोन में ना कोई भी आंसर सिलेक्ट कीजिए जो आपको सही लगता है और सिलेक्ट कीजिए।
selected, and there's a submit button right at the bottom of the options. So please make sure you submit it as well. Can we just see the live view of the responses? Okay. So there's a huge proportion of us that feel that Prem love is highly related to Shamapna. Is there anyone who's still submitting the question? Can we have the QR code again for those who just came in? So for the speakers, this is a time where you can start to prepare your answers because we'll be shooting questions at you soon. Are we okay? Okay, can we have the responses again? Okay, so based on the responses, here's what we'll do. We'll go popcorn style. इसका मतलब क्या है कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे जवाब देने के लिए. जिसको जवाब देना है वो हाथ ऊंचा करके दे सकते हैं based on your readiness of the question. But essentially, आपको क्यों लगता है कि प्रेम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स क्यों आया? आगम वाक्य है, दसवें कालिक सूत्र में आया है. पहले मैं उच्चारण करूंगी, फिर आप साथ में उच्चारण करेंगे. उपसमिर्हणि कोहम माणम मद्दवयाजिने मायम चज्जव भावेण लोभम संतोषोचिणे. आप एक बार साथ में बोलेंगे. उपसमिर्हणि कोहम माणम मद्दवयाजिने मायम चज्जव भावेण लोभम संतोषोचिने. अपने शास्त्रों में 4 प्रकार के कसाय बताए गए हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ. भगवान ने कहा है उपसमेन हरे गोहम. उपसमन शांति से तुम क्रोध को जीतो. इस वाक्य से हम कह सकते हैं कि क्षमा का रिलेशन प्रेम से है, क्योंकि क्षमा एक ऐसा तत्व है. क्षमा का मतलब है आवेश की परिस्थिति उपस्थित होने पर भी क्रोध आ रहा है, फिर की मन की वृत्ति को शांत रखना, इसका मतलब है क्षमा. अगर किसी ने भूल की है, अपराध किया है, अपराधी को अपने मिस्टेक का रियलाइजेशन करवाने के लिए भी हमको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए. तो इससे मतलब है कि क्रोध क्षमा का संबंध प्रेम से ज्यादा है. क्षमा और प्रेम दोनों एक चीज कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है. जब मुझे याद है श्री कृष्ण जी पांडव महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, वो श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने कहा हम तो तीर्थ यात्रा करेंगे. तब श्री कृष्ण जी ने कहा तुम एक काम करो, मेरी तुम्बी को भी ले जाना और इसको भी स्नान करवाना. तीर्थ यात्रा संपन्न करके आए श्री कृष्ण के पास. श्री कृष्ण ने कहा मेरी तुम्बी दे दो. तुम्बी दी, उसके टुकड़े किए और टुकड़े को जब चाटा खाया, खारी निकली. श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा क्या तुमने मेरी तुम्बी को स्नान नहीं करवाया? उन्होंने कहा हमने तो एक बार तीर्थों में स्नान किया, लेकिन इस तुम्बी को दो बार स्नान करवाया. तब श्री कृष्ण ने कहा ये खारी कैसे रह गई, बिटर कैसे है, इसको भी स्वीट होना चाहिए था, रस से भरा हुआ होना चाहिए था. तब श्री कृष्ण जी वो उत्तर नहीं दे पाए, सोचने लग गए कि इसका आंसर क्या दो. तब श्री कृष्ण जी ने कहा आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील टटादयोर्मि तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा. इसका मतलब है पांडवों से कहा पांडव अगर तुम्हें स्नान करना है, आत्मा नदी है, उसमें स्नान करो. सत्यावहा, उसमें सत्य का पानी बह रहा है. शील तटा, इसके जो नदी के 2 किनारे हैं
वो सदाचार के दो किनारे हैं और उसमें उर्मियां उठ रही है, दया प्रेम की उर्मियां उठ रही है। उस नदी में अगर तुम स्नान करोगे तो तुम्हारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। बंधुओं, क्षमा और प्रेम दोनों एक चीज कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्षमा का मतलब है प्रेम भाव जब व्यक्ति के मन में होता है तभी व्यक्ति क्षमा कर सकता है। आपको पता होगा भगवान महावीर पर कितने संकट आए। संगम देव ने 20 मारणांतिक कष्ट दिए, चंड कौशिक सर्प ने भगवान को डसा। भगवान बार बार उसको प्रेम से समझा रहे हैं, बुझ बुझ, अरे चंड कौशिक तुम समझो तो सही, तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए। पहले चंड कौशिक सर्प एक बड़े आचार्य थे, आचार्य पद पर रहे और तुमने वहां पर क्रोध किया, क्षमा नहीं की। परिणाम क्या हुआ? तुम 3 इंच गलती में चंड कौशिक के रूप में पैदा हुआ। और अब तो तुम समझो और अपनी बात का विचार करो। भगवान की वाणी का असर हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने चंड कौशिक सर्प वहां पर बैठा है। लोग उसमें दूध डाल रहे हैं, कोई कुछ डाल रहा है, चींटियां आ गई बंधुओं, लेकिन इतना क्षमा भाव उसका बढ़ गया। तो मैं कहना चाहूंगी हम प्रेम को, अगर हमें क्रोध को जीतना है हमें क्षमा भाव बढ़ाना होगा। अहंकार को जीतना है तो विनयी बनना पड़ेगा। हम जितने नम्र बनते जाएंगे, कहते हैं इफ ईगो कम्स एवरीथिंग गोज फ्रॉम यू, इफ ईगो गोज एवरीथिंग कम्स टू यू। हम जितने विनम्र बनते हैं ज्ञान हमें उतना जल्दी मिलता है। और माया से भगवान ने कहा तुम सरलता को जीतो, सरलता से ऋजु बनो, पवित्र बनो, अंदर से निर्मल बनो और माया को जीतो और लोग को संतोष से जीतो। तो बंधु आप समझ गए, क्रोध, क्षमा और प्रेम दोनों एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से उनका रिलेशन है। तो हम क्षमा भावना को बढ़ाए और हम तो क्षमा की अनुप्रेक्षा भी करवाते हैं कि मेरे में क्षमा भावना बढ़ रही है। और मैं एक बात बता दूं आपको, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, ये जो हमारा बिटवीन मिडल पोर्शन ऑफ हमारा ये ललाट का मध्य भाग, यह ज्योति केंद्र है। यहाँ पर पूर्णिमा का चांद का ध्यान करो और यह ध्यान जितना आप इंटेंसिफाई योर एफर्ट, ट्राई टू विजुअलाइज बाय ब्राइट मून कलर, ब्राइट मून कलर। अगर हम इसका ध्यान करते हैं हमारा प्रेम भाव भी बढ़ेगा और हमारा क्षमा भाव भी बढ़ेगा। क्षमा में जो शक्ति है वो और किसी में शक्ति नहीं। एक व्यक्ति मांस खमन की तपस्या करे, उससे जितने कर्म नहीं करते हैं, अगर व्यक्ति क्षमा भाव धारण कर ले, प्रेम भाव धारण कर ले, तो 1 महीने के जो कर्मों की निजरा है वो केवल क्षमा भाव से वो कर सकता है। तो क्षमा एक बड़ा शस्त्र है और क्षमा शस्त्र कहते हैं, क्षमा शस्त्र जिसके हाथ में होता है दुर्जन उसका क्या कर सकता है। अग्नि चल रही है, अगर उसमें तृण नहीं डाले तो धीरे धीरे क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही क्षमा से सामने वाले व्यक्ति कितने भी क्रोधित हो सारे शांत हो जाते हैं, क्योंकि क्षमा के वाइब्रेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और क्षमा के वाइब्रेशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओम beautifully explained how prem relates to Shamapna. समय को ध्यान में रखते हुए we'll request the speakers if we can limit the answers to just 1 to 2 minutes maximum, so that we can go through more questions and have more diversity in our responses as well. जय जी। देखिए कि प्रेम आंसर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम क्यों, ये प्रश्न था। और 4 कषाय में कोई प्रेम नाम की कषाय नहीं है। क्रोधमान माया लोग क्यों कहते हैं, तो उसमें कोई प्रेम नाम की कषाय नहीं। इसलिए प्रेम सही आंसर है, लेकिन वो रिजल्ट है, वो कारण नहीं। इट इज नॉट दी कॉज। मूल में हिंसा अहिंसा है, क्योंकि हम यदि गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्रोध आता है। तो कषाय में तो क्रोध से रिलेटेड हो, मान के कारण भी क्रोध आता है, लोभ के कारण भी क्रोध आता है। तो ये चारों ही कषाय के कारण से क्रोध आता है। इसलिए सचमुच तो ये अहिंसा से रिलेटेड है। क्योंकि टाइम कम है, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अहिंसा किसकी या हिंसा किसकी। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि भी क्रोध करने से हिंसा होगी, किसकी हिंसा होगी? पहले तो अपने स्वयं की हिंसा होगी, भाव पर आत्मा को हमने पहले ही मार दिया और हम कषाय में जिसने कुछ कहा उसको लेकर के उलझ गए। इसलिए जो जैन मत हमारे हिसाब से जो हमको समझ में आया
पुरुषार्थ गीता और बहुत सारे जो ग्रंथ है उसमें बहुत क्लियर है कि रागादि भाव का होना वही हिंसा है। राग की उत्पत्ति हिंसा है, तो इसलिए प्रेम भले उसका आउटकम है लेकिन कारण नहीं है, कारण मूल में तो हिंसा है। इसलिए अहिंसा ही यहाँ पर बेस्ट रेलेवेंट आंसर है। ये गलत ऐसा नहीं कहना, प्रेम उसका रिजल्ट है, प्रेम तो होता ही है। प्रेम क्यों होगा? क्योंकि हिंसा हो रही है, इससे प्रेम करो। तो इस तरह से दोनों उत्तर में भेद करना चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ घाती कर्म इत्यादि की जो बात चली वो भी इसी तरह से ही है, क्योंकि घात होता है किसका? आत्मा के भाव का। वो सामने वाला व्यक्ति आत्मा है, उसका भी हमने घात किया, और मैं भी एक आत्मा हूँ, उस भाव का भी हमने घात किया। इसलिए ये हिंसा है, ऐसा इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। So we can see that there is multiple options that can be related to the same question, and it's all about perspectives. So we'll quickly move to the next question and then give the other speakers a chance to speak as well. Can we have the next question? According to you, which of the following situations best explains ક્ષમાપના, forgiveness? તમારા માટે નીચેમાંથી કઈ પરિસ્થિતિ ક્ષમાપનાને શ્રેષ્ઠ રીતે સમજાવે છે? आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति क्षमापना को सबसे अच्छी तरह से समझाती है? A. Ignoring an argument to maintain peace. B. Confronting someone peacefully for their mistake. C. Repeatedly apologizing for a small mistake. D. Understanding and forgiving someone who has hurt you unintentionally. So all of these options relate to us in one way or another, but which of the following situations, in your opinion, best explains Kshamapna? We cannot put answers. The slide is not there. The option is not there. Refresh. It is there. Just pull down your screen and it should be able to refresh the page for you. I have a QR code. It's there. Does anyone have any issues logging in? Do we need the QR code again? Yes, yes. Yes, someone needs it. We have volunteers around who will come to help you. Just raise your hand if you need some assistance. થોડી તકલીફ તો થશે કારણ કે આપણે આજે છે ને આ સેશન યુથ લોકો સાથે કરવા બેઠા છે. યુઝ્યુઅલી શું હોય છે આપણા પ્રવચનમાં એ લોકો બેસતા હોય છે. सो इस बार ऐसा है शम्मी जी, इस बार ऐसा किया है शम्मी जी, हर बार क्या होता है इन लोग प्रवचन देते हैं, उन लोग सुनते हैं, और ये सब बड़ों के साथ ये छोटे छोटे बच्चे बाद में आके बैठ जाते हैं तो उनको आधा समझता नहीं है. तो आज उन लोग ने ऐसा किया है कि हमारे हिसाब से आप लोग करो सत्संग, इसलिए आधा आपको नहीं समझेगा तो भी आप समझिए कि यूथ की क्या हालत होती रहेगी. सो थोड़ी तकलीफ होगी आपको, आप पूछ लेना तो आपको यूथ समझा देंगे. Can we see the live responses for this question? We haven't answered this. No worries, you can keep answering the question. Rubal, can we have the options? Just a few more seconds. Okay, can we have the responses? So one of the good part is the last question was answered by 129 people. Even here also we are having 126 people answering. So it is really a good sign. आप लोग सच में यूथ बनते जा रहे हैं, इसका ये प्रमाण है कि ये हॉल में से 127 people ने आंसर किया है और 78% people feel कि the fourth answer is maximum related. So yes, you can ask. नहीं, ये जो चौथे नंबर का आंसर है वो ठीक है, क्योंकि जो हमारे साथ क्षमा का भाव नहीं रखता उससे हम क्षमा नहीं कर सकते. एक छोटा सा उदाहरण से आप सारी बात को समझ जाएंगे. यदि डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, दवाई करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी पेशेंट मर जाए तो डॉक्टर नहीं मर जाता. इसलिए किसी ने हमसे गलत व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, क्रोध का व्यवहार किया, तो इससे कारण हमें उससे कोई झगड़ने की कोई जरूरत नहीं. जैसे डॉक्टर का व्यवहार होता है न तो वो झगड़ा करता है, न उसकी बात को इग्नोर करता है, न कन्फ्रंट करता है, न अपोलोजाइज करता है. बोल भी दे लेकिन कोई मतलब नहीं है.
इसलिए बेस्ट सिचुएशन जो किसी भी क्षमा की हो सकती है वो चुप रहना। क्योंकि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा तो ज्यादा नहीं होगा, एक आध बार आप बोलेंगे तो और गुस्सा होगा, जवाब दिया तो और गुस्सा होगा। इसलिए बेस्ट सिचुएशन यही है कि हम शांत रहें, तो परिणामों की शांत तरह से श्रीमद ने कहा, वो तो वही तरीका और कोई तरीका नहीं, अपने भावों को शांत रखना। डॉक्टर का एग्जाम्पल हमेशा ख्याल में रखिए कि डॉक्टर शांत रहता है, इस तरह से हमें भी शांत रहना चाहिए, और इसीलिए ये बेस्ट आंसर है। और इसमें भी हर्ट की बात है, तो क्योंकि नहीं तो कोई भी आंसर दीजिए आप हर्ट करेगा सामने वाले, तो बेस्ट कहीं ऑफिस में हो, आप इसको जनरलाइज कीजिए, समय नहीं अभी, लेकिन जनरलाइज कीजिए कि यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपने जवाब दिया या क्षमा मांगा तो वो कहता मैं क्षमा नहीं करता है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार क्षमा का अवसर बना 16 या 17 की बात 2017, उसमें एक अधिकारी ने कहा कि नहीं, आई विल नॉट फॉरगिव, आई विल नॉट से दैट आई विल सीक फॉरगिवनेस। क्यों, मैंने क्या अपराध किया जो क्षमा मांगा? तो ऐसे लोग मिले जाएंगे। जो आपके प्रश्न में भी एक प्रश्न था कि सामने वाला क्षमा नहीं करे तो मैं क्या करूँ? तो कोई बात नहीं, इसके कर्म वो जाने, हमारे कर्म हम जाने, हम तो अपने भावों में इरेज कर दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समाप्त करते हैं लाइन में कि यदि हम 2 और 2 10 लिखते हैं, 2 + 2 = 10, तो उसको सुधारने में कितना समय लगता है? और किसको कहने की जरूरत है? हमसे गलती हो गई, जस्ट इरेज नहीं, इरेजर लगा सीधा। ऐसे ही हमारे अनंत काल के कर्म एक इरेजर में कि मैं एक आत्मा हूं, उसमें सब खत्म हो जाए। क्या किसी से क्या किसी ऐसे ही एक क्षण में जो कर्मों का नाश की बात चलती है, इसी तरह से जब भी जीव को ज्ञान हो जाता है क्षमा अपना धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, ऐसा जानते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए लास्ट आंसर इज द बेस्ट आंसर, और अदर पॉसिबल आंसर नहीं है। So very good thing he said कि other answers may be right, and you know what? ये आपको राज में जरा खोल दूँ। मैंने मोहिल को पूछा, जब उन्होंने मुझे बताया ना कि ये तो सब अप्लाई होता है, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं होता और ये होता है। आप देखेंगे ना तो पहले क्वेश्चन में आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, अपरिग्रह, यानी जब परिग्रह करते तभी तो हिंसा होती है, तभी तो अनबना होता है। तो यूथ जो है ना बहुत स्मार्ट है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया मालूम है कि ये प्रश्न, इसमें से कोई एक ही सही है ऐसा नहीं, ये चारों के चारों सही है। लेकिन इस बार उनको क्या करना है कि इतने लोग बैठे हैं, उसमें कितने लोग प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं, कितने लोग ए आंसर को महत्व देते हैं। तो इसकी वजह से, जैसे वो AI बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमको समझते हैं, ये यूथ हमको समझ रहे हैं। अगर जैसे जयदीलाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई लास्ट में कि ये दूसरे भी गलत है ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं कि जैनिज्म का एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल अनेकांत है, कि अपेक्षा से सब सही है। सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू जयदीलाल जी। सो थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट जब आंसर करेंगे ना तो कंफ्यूज मत हो जाइए, ये ऐसे कैसे आंसर दिए, इसमें कौन सा सिलेक्ट करना है? अरे कौन सा भी एक करो, और फिर उसके ऊपर से यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो स्पीकर्स जो है वो आपको समझाएंगे। So now for the next question, what we're going to do is Sandeep uncle is going to throw a specific situational question to the speakers directly, and we'll hear from them what they have to say and their perspectives on the question. Yeah, so this is where now the forum. Yeah. Now the seniors are coming. Yes. यूथ आके गए, हाँ, उन्होंने 2 गुगली डाले और अभी क्या आएगा आप समझ लो। हाँ, अभी ये सीनियर्स है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं हमको। नहीं, तो this senior question is not a senior, it's a question from a नहीं आप spiritual यंग, seeker. नहीं आप यंग हो, हमें आप एक्सेप्ट करते हैं। गलती से आप उनको सीनियर मत कहना। So, and in the spiritual journey, I'm still in kindergarten, so that's the. तो अभी एक्चुअली एक प्रश्न आता है सब स्पीकर्स पे कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो आप उसमें ये रहता है कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मैं क्षमा दे दो, यू नो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जैसे राजू भाई ने भी ड्यूरिंग द वीक बताया कि आप एक मैसेज आया, अच्छा लगा, कहीं से क्षमापना का
चलो सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दिया, तो मैंने मेरे तरफ से अपना समापना कर दिया। तो क्या ये आज के युग का जो ट्रेंड है और हम जो करते भी हैं हम उसमें हो नहीं, तो इज दैट राइट और डू यू हैव एनी पर्सपेक्टिव ऑन दैट? I think you should ask this to Jayesh ji because since he is connected with computer field. Yes sir, संजय जी. So आप अगर चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर आप भी इन सबको है ना, सब में से बेस्ट चाहिए। वो बोल रहे थे कि हमारे सिंगापुर में एक नहीं, दो नहीं, चार स्पीकर्स हैं, हाँ, तो हम सबका क्रीम लेना चाहते हैं। सिंगापुर होशियार तो छे ना, मतलब वाणिया जे कहे ने आपने के बेस्ट लाभ ले ले, तो उनको ऐसा लगा कि हम जयंतीलाल जी का भी लाभ ले, जयेश जी का भी लाभ ले और शमणी जी का भी लाभ ले। और इनफैक्ट केनुल भाई ने बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि जब मैंने उनसे पूछा ना कि भाई पास्ट में कौन आया था कराने, तो तब उन्होंने बताया कि शमणी जी आए थे और उन्होंने बताया कि हमको बहुत मजा आया था। और जब ये आइडिया उन्होंने एमसी के साथ डिस्कस करके पुटअप किया, तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि अगर शमनी जी आएंगे तो पूरा समाज वापस, गए साल तो था उनके साथ, इस बार वापस शमनी जी से कनेक्ट होंगे और दूसरे भी जो आए हैं यहाँ पे स्पीकर्स, उनका भी लाभ हमें मिले। So I really appreciate the committee and the SDRS president, everyone. This is such a wonderful thought कि सब लोग साथ में आए। एक बार मुझे गुरुदेव जी को किसी ने पूछा था कि आप जैन बोलते हो, लेकिन जैन में भी कितने सारे डिफरेंट मत हैं। उन्होंने ये जो क्वेश्चन था वो ऐसे पूछा था कि श्रीमद् राजचंद्र जी में भी कितने सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन किया था। और आप मानोगे नहीं, इतना सुंदर जवाब दिया। ये मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अब मैं जो ये देख रहा हूँ ना, तो लग रहा है कि जो गुरुदेव ने जो आंसर दिया था उनको, वो कितना परफेक्ट था। तो गुरुदेव ने उनको पूछा, जिसने क्वेश्चन पूछा था ना कि इतने अलग अलग मत पंथ और इस क्यों है, तो गुरुदेव ने उनको ऐसे 5 उंगलियां बताई और क्या क्या पूछा पता है कि ये सेम है कि अलग अलग है? ये सब अलग है, ये सब अलग अलग भी है, सबसे जुदा भी है एक दूसरे से, है कि नहीं? लेकिन आप देखोगे तो ये जब यहाँ आती है तो सब एक हो जाता है। और द बेस्ट पार्ट बोला उन्होंने कि भले उंगलियां जुदी जुदी है, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, कोड़े ने सुखे, हाँ कौवा, वो कौवा नहीं, नॉट द क्रो, इनको वो बोलना पड़ेगा। तो ये बोले क्रो कहाँ से आ गया इसके अंदर? सो इन हिंदी कौवा has 2 meanings. One is morsel. So when you have to take a morsel, what happens? See, do it. All the 5 come together. All are one. So भले आज अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन we all Jains are one. Thank you. So, हाँ? How is it? हाँ तो देखो, मैं बोला देखो इतना क्रीम मिलने वाला है ना, आज क्रीम ऑफ द क्रीम्स मिलेगा। हाँ, एक राजू जी से क्या आप ले रहे हो? आपको तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आपको मिलेंगे। सो जय जी के बाद जय जी ने क्षमा, अभी भाई ने बोला सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, क्षमा हो गया। वास्तव में क्षमा का अर्थ शब्दों से नहीं, क्षमा का अर्थ हृदय से। शब्दों में हम फॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं कई बार, जिसके प्रति हमारा भाव नहीं है उसके प्रति भी हम ना चाहते हुए भी केवल एक व्यवहारिक रूप से मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जबकि मेरी दशा अंदर की नहीं थी। अगर वो सामने आ जाए ना, उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करूँगी, फॉरवर्ड ही कर दिया। ठीक है, सब कर रहे हैं, ग्रुप में ऐड है, कर दिया, देख लेगा ठीक है, नहीं देखेगा मेरा क्या जा रहा है। लेकिन उसके सामने आने पर मेरे हृदय के परिणाम कैसे होते हैं, उसके सामने क्षमा। क्षमा बहुत गहरी चीज है। करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम, क्षमा, दैट इज सिनोनिम्स। ये सब एक ही है। इस माह के अभी 2-4 दिन पहले इस योग के श्रेष्ठ आचार्य शांति सागर जी महाराज ने
जिन्होंने मुनि मार्ग को फिर से परिचय दिया हमें, क्योंकि उनसे पहले लगभग लोप हो गया था जब प्रलय हुआ था, कुछ हुआ है, अकाल पड़ा था 12 वर्ष का उस समय, 100 रह गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से फिर से हमें परिचय कराया। उनके जीवन की घटना बहुत अच्छी मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर अंदर प्रेम, करुणा या क्षमा का भाव है, मेरे कर्तव्य को भी मैं कैसे कर सकता हूँ। एक बार की बात की, वो मंदिर में समय के लिए बैठ रहे थे और बैठने वाले थे, अचानक देखा कि ऊपर घोंसला लगा हुआ है, एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया। बहुत समय पे बैठना है उन्हें, लेकिन वो बच्चा पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, तो उन्होंने समय को थोड़ा सा पोस्टपोन किया, ये सोच कर कि अगर मैं समय में बैठ जाऊं कि बिल्ली आकर उसको खा जाएगी, तो मेरा धर्म नहीं है। तो थोड़ी देर बाद देखा कोई व्यक्ति आया, उसको इन्फॉर्म किया कि वो समय में बैठे, ये है क्षमा असली, ये है धर्म। शब्दों में कहना, इच्छा में तो कर्म कह दिया, क्षमा भाव कह दिया, ये सब कर दिया। जितना हम झुकते चले जाएंगे उतने ऊपर उठते चले जाएंगे, और जितने हम भावों से विशुद्ध बनेंगे उतनी बड़ी क्षमता, कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। इसलिए क्षमा उसका नाम है, ये क्षमा का भाव। इसलिए आप फॉरवर्ड न करें और भले सिर्फ 3 शब्द लिखें। I am sorry, इतना भी लिख देना तो भी वो दिल से, आपके शब्द हैं, आपके भाव में से। क्षमा अगर सॉरी भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं करे, हर चीज के लिए 3 वर्ड बोले ना, 3 वर्ड एक कर दो, और अकेले आज के दिन या वो दिन नहीं, हमेशा एक चीज कहो, मैं होना, बस क्षमा हो जाएगी। और कुछ नहीं चाहिए व्यक्ति को, आपका पैसा, आपका सब कुछ नहीं चाहिए। कई बार कोई कष्ट में है या कैसे भी है, बस एक चीज दे दो कि मैं हूं। वह का इतना वर्ड, उसकी बहुत बड़ा ताकत बनेगी, बहुत बड़ी हिम्मत बनेगी, और बहुत बड़ा धर्म बनेगा जो आगे बढ़ सकता है, अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। So just taking a cue from what Rajuji had shared earlier in the week, there was an acronym he had given, IAS. IAS is I am something. So now we take a cue from here and we say I am sorry. That also is IAS. So just उसी से actually संबंधित एक क्वेश्चन था कि अगर हम जैसे सोशल मीडिया का भी कर लिया, ये भी कर लिया, और हमने मन में भाव रखा बस कि आई एम सॉरी, तो वो करना मन भाव से क्षमा करना इस हेलो या मन भाव से क्षमा कर देना, इज दैट इनफ, या जिस व्यक्ति के प्रति हम क्षमा कर रहे हैं उनसे फेस टू फेस रूबरू करना चाहिए हमें? इसका आंसर इस तरह से हो सकता है, क्षमा जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होता है वो बात अलग है, वो व्यवहारिक क्षमा व्यवहार में करते हैं। इतिहास की बात है कि राजा उदय, उसने चंद्र प्रद्योतन को कारावास में डाल दिया था। संवत्सरी का महापर्व आया, उसने पहले परिवार वालों से, सामंतों से, अपने जो निकट के रिश्तेदार थे उनसे क्षमा याचना की। फिर कारावास में गया, चंद्र प्रद्योतन से क्षमा की कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, शब्दों से बोला, भाव से बोला। तब चंद्र प्रद्योतन ने कहा, यह कैसी क्षमा, मैं कारावास में हूँ और आप बाहर है, और इस समय आप मुझे क्षमा कर रहे हैं, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन यह क्षमा का भाव लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। अगर आप मुझे इस परिस्थिति में रखेंगे कारावास में, तो यह क्षमा लंबी नहीं टिकेगी। तब उद्योतन ने, राजा उदय ने इस बात के बारे में विचार किया, स्वयं ने ताला तोड़ा, उसको बाहर निकाला, हृदय से मिले और दिल से क्षमा की। तो बंधु, एकदम अंदर के भावों से जो क्षमा की जाए, बाहर में कोई तरंग न रहे उस व्यक्ति के प्रति, वो रियल क्षमा है। तो हमें क्षमा ऐसी करनी चाहिए, अंदर बाहर विशुद्धता के साथ में, भावों से करनी चाहिए। अगर मन में थोड़ी सी भी कुटिलता है तो क्षमा नहीं होगी। तो भाव से एकदम एकजुट होकर के समाक्ष मन वचन काय के एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, और वो क्षमा अगर की जाती है वो रियल क्षमा है। ऐसा है कि
कई लेवल्स होते हैं। क्षमा एक शब्द या एक भाव तक सीमित नहीं होता। एक होता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि या किसी की क्षमा, उस शब्द मात्र में रह जाती है, तो चाहे शब्द का माध्यम टेक्नोलॉजी हो या और कोई हो, सोशल मीडिया हो, वो एक लेवल है। दूसरा लेवल है वो जो ज्ञानी की क्षमा की बात है, सम्यक दृष्टि की क्षमा की बात है, वो दूसरा लेवल है जहाँ पर लोग रागारिक भाव को जो उत्पन्न हुआ, क्रोध का भाव हो, उसको ही गलत मानता। और उससे तीसरा लेवल है जो साधु या साधु गृहस्थी व्रती श्रावण, उसके जो क्षमा का भाव है वो अलग लेवल का है। और उससे बढ़ करके जो मुनिराज की क्षमा का भाव है वो अलग है। और फिर आनंद भगवान का प्रतिपाद है। क्षमा के और क्रोध के अलग अलग लेवल है। सरल भाषा में बोला जाए, टेक्निकली ढंग से बोला जाए तो अनंतानुबंधी क्षमा होती है जो अज्ञान की होती है, जो समझता तो नहीं है लेकिन क्षमा मांगना इसलिए मांग लिया। एक जोक आया था थोड़े दिन पहले कि किसी के पिताजी की मृत्यु हुई, तो बेटे का अच्छा मृत्यु हुई, मैं भी डाल देता हूँ उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया, सबको बता दिया, सब फ्रेंड्स को फेसबुक में फिर डाल दिया मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। तो किसी ने उसको फिर मैसेज दिया नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तुमको स्मशान में ले जाना पड़ेगा। अच्छा उसने फिर वो सब ऑर्डर दे दिया, कहाँ से काम आ आएगा, कैसे होगी, फिर उससे भी नहीं हुआ। इस तरह से वो करता ही गया, सारा का सारा उसकी क्रिया उसी में हो गई। यार गुजरात में कहावत है ना कि मन में पढ़ाना मन में रह गया। मन में ही शादी कर ली और मन में ही विधवा हो गए, मन में बच्चे हो गए और मन में ही मृत्यु हो गई। ऐसे क्षमा नहीं होती, ये कहना भाव से होती है बराबर है। भाव का कैसा लेवल, तो अंतिम का जो लेवल है क्षमा का वो ये कि क्रोध का भाव पैदा ही नहीं हो, और उससे नीचे का यदि पैदा हो गया तो ये मुझे मेरे लिए उचित नहीं था, अंदर में प्राश्चित करे या कुछ भी करे, वो लेवल। उससे नीचे के लेवल इस तरह से, तो जो अलग अलग लेवल से, ठीक है, हम जिस लेवल में भी हों उस प्रकार की क्षमा का भाव रखना, और नहीं तो आगे आगे के लेवल में जाने की कोशिश करना। आपने कषाय के बारे में सुना होगा, सरल उदाहरण जिससे बात जल्दी समझ में आ जाए। एक होता है पत्थर पर रेखा डालना, ठीक है, वो जल्दी मिट्टी नहीं, और एक जमीन पर रेखा खींचना जो थोड़े समय बाद मिटती है। तीसरा रेत में रेखा खींचना, वो थोड़े बहुत जल्दी ही जैसे हवा का झुका है मिट जाती है। और एक पानी में रेखा, तो वो बनते बनते ही मिटता है। तो क्रोध या क्षमा का जो भाव है वो पानी के लेवल वाला चाहिए, वो हमारा आदर्श, वो जैन धर्म है। और इसके पहले जो जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपना अपना प्रयास है, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। क्षमा के बाद कहीं एक भाव में अटक नहीं जाना। So very beautifully we are getting different viewpoints in a different way. Shamni ji explained with the example of an example story कि कई रीते इन्हें अप्लाई करवाना। जयंतीलाल जी ने टेक्निकल पॉइंट बताया कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैसी है क्षमा, राइट? सो इट इज वेरी नाइस टू हैव दिस, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड विच एवरीबडी नोज हियर। भावे भावना भाविये, भावे बीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल બધાનું મૂળ શું છે? ભાવ હોવા જોઈએ। જે કંઈ પણ કરીએ એ દિલથી કરીએ, 100% કરીએ, અને ભાવથી કરીએ તો જો કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે। એન્ડ યુ મસ્ટ હેવ લિસન્ડ ન્યુમરસ સ્ટોરીઝ કે જેની અંદર ક્ષમાનો ભાવ જાગ્યો અને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય। સો આટલો બ્યુટીફુલ આપણને ધર્મ મળ્યો છે, આટલી બ્યુટીફુલ આપણને કળા મળી છે, આટલી બ્યુટીફુલ આપણને સમજ મળી છે। હવે એ સમજમાં છે ને ભાવ લગાવવાની જરૂર છે, રાઈટ? થેન્ક યુ। क्षमा के लिए बोला फेस टू फेस होना जरूरी है या भावों से। अब इसलिए जब तक भावों से क्षमा नहीं होगी तब तक फेस टू फेस में कुछ नहीं हो पाएगा। प्योरिटी ऑफ सॉल, दैट्स क्षमा। वो लेवल हाई लेवल है, हमारा टारगेट वही है। जिस लेवल पर है ये बताना मैं, उस लेवल पर हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम अपने अंदर की वेव्स पॉजिटिव क्रिएट करें। जिसके प्रति हम अच्छा चाहते हैं, अच्छा उसके प्रति करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। एक्चुअली क्षमा करके हम
सामने वाले को अच्छा बना पाए ना बना पाए, सबसे पहले हम खुद को अच्छा बनाए। जब तक खुद को अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक हमारी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं कहलाएगी। कई बार क्षमा करके अपने को बड़ा बना लिया, ईगो है, मैंने उसको क्षमा किया, जाओ मैंने क्षमा किया, जाओ, ये क्षमा नहीं है। जब तक मेरे अंदर की प्योरिटी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, हम कई बार फेस टू फेस नहीं भी हो पाए, कई बार संकोच होता है, कई बार कोई बात ऐसी आ गई है, गलती उसकी थी, सोचता है वो पहले आए, मैं क्यों जाऊँ, और वो सोचता है ठीक है भले मेरी गलती है लेकिन वो छोटे हैं, वो तो आ सकते हैं, मैं बड़ा हूँ। नहीं, इसमें क्षमा में छोटा बड़ा होता ही नहीं है। क्षमा प्योरिटी, जितने हम प्योर होते चले जाएंगे अंदर से, परिणाम निर्मल होते चले जाएंगे। हम अब एक अपने अंदर का ऑरा क्रिएट करें, परिणाम अच्छे होंगे, वो वेव्स वहां तक जाएंगी और वेव्स वहां तक जाएंगे। बस एक ही चीज कहते रहे कि मेरे को अच्छा लगता है, उसके प्रति मेरा कोई बुरा भाव नहीं रखना, कोई बुरा भाव नहीं रखना, कोई बुरा भाव नहीं रखना, कोई बुरा भाव नहीं रखना। ये कंटिन्यू अगर विचार करेंगे तो वेव्स निश्चित रूप से उसको इफेक्ट करेंगी और वो आए ना आए मैं उसके सामने पहुंच सकता हूँ, फिर वो फेस टू फेस करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपने ये बात जो बताई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। What he talked about is that waves means vibrations. When you send the vibrations of love, of forgiveness, it affects. You know what? What Jainism has been saying for centuries. Now the same thing, the Westerners, the psychologists are using it and they are finding success. Exactly what he said, one of the very big psychologists in South India, she experimented with this. उन्होंने जो बताया ना कि आप वाइब्रेशंस भेजो, वेव्स भेजो लव के, तो she designed this on based of this principle only. She said कि you think of that person here, think of that person and just say two things, I forgive you and I forgive myself also. And this technique is called something like Ho'oponopono. It's a, you can Google it and find out. So the science is saying, so what he said is so true. Unless it is in your feeling level, it is not going, you won't be able to do face to face. And even if you do face to face, no, it won't have the effects. Thank you so much. Very nicely explained. पानी में लगे हुए उसके सैद्धांतिक वर्ष संजुलन प्रत्यक्षण प्रत्यय और अनंत अनुबंधी Perfect. इसमें अपन प्रयास ही करते हैं कि अनंत अनुबंधी की तरफ ना जाए, क्योंकि आचरण में अगर एक बार अनंत अनुबंधी बंद गई तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर और तक भी संसार में निश्चित हो सकती है। और उसका टाइम पीरियड बताया है कि 6 महीने से अधिक किसी के प्रति शायद रह जाए तो वो कन्वर्ट हो सकती है, वो जरूरी नहीं हो सकती है 6 महीने के अंदर। इसलिए जैनिज्म में बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि हर 4 महीने में क्षमापण आ जाती है। हर 4 महीने, 6 महीने हो ही नहीं पाते, हर 4 महीने क्षमापण आ जाती है। अपन वही कोशिश करें कि ये हो गए। दूसरा, अगर कषायों को तीव्र नहीं करना है, कषायों को बहुत लंबे समय तक नहीं बरतने देना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कैसे ही बात हो जाए, गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक चीज करें, बोलना ना छोड़ें। जहां बोलना छोड़ा वहां सारे रास्ते खत्म। कुछ भी नहीं है, कोई मिल जाए, बस एक वर्ड जैसे इतना बोल सकते, मैसेज छोड़ दें जैसे भले वो एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपनी ओर से बस जैसे करना। सामने मिल जाए, मुंह फेर रहा है वो हमसे, हमें इग्नोर कर रहा है, तभी बस जैसे कर। अगर ये करते रहे ना तो निश्चित रूप से वो चेंज होगा, उसके अंदर क्षमा अपने आप हो सकता। And what we said now you will be able to relate कि मम्मी આપણને પકડીને કયા દિવસે टुडे इज द लास्ट डे, समझ से तुझे आना ही पड़ेगा, खींच के लेके दे। ऐसे बहुत जन को एक्सपीरियंस इधर ऊपर भी रहेगा, राइट? जब हम यूथ थे वी डोंट लाइक दिस, बट दिस इज द रीजन जो उन्होंने बताया ना कि पत्थर की लकीर। एंड व्हाट ही सेड कि इफ यू डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस within 6 months, after that if you delay it goes into anantanubandhi, so it will go on multiplying. So it's same like when the tea falls on the cloths, what would you do? You would go immediately,
But if you take 2-3 days for that, then the stain will be permanent. So very nicely. So now you should be able to relate the youth. Okay, why this is the importance of संवत्सरिक प्रतिक्रमण, right? सांवत्सरिक क्षमा याचना करनी तो बहुत जरूरी है। अगर साल भर में क्षमा नहीं की तो सम्यक्त्व चला जाता है और मिथ्यात्व आ जाता है। तो सम्यक्त्व के बिना श्रावण की गति में भी बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अपन के लिए नियम है, पहले तो देवसिक, फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक। आज के दिन पक्षी का दिन आपके संवत्सरी मना रहे हैं, तो आज के दिन तो पूरा दिन हल्का होना चाहिए। अगर आज के नहीं हुआ तो फिर सम्यक्त्व रतन चला गया। ये रतन बड़ा महत्वपूर्ण है अपने लिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक कपिल पिंगल की है अपनी बात, शॉर्ट सी बात बताती हूँ। अपने आगम की बात है। कपिल और पिंगल दोनों दोस्त थे और इतना प्रेम, कोई ऐसी बात हो गई कि दोनों की बोलचाल बंद हो गई। अब कपिल क्या है, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा है और पिंगल बेटा सीधा साधा है। जब वो संवत्सरी के दिन क्षमायाचना करता है, उसे क्षमा मांग रहा है, तो उसने मुंह फेर लिया कि मैं क्षमायाचना नहीं करूंगा। अब सर्वज्ञ विजयव्रती आए, सर्वज्ञ भगवान आए, तो गांव में लोगों ने पूछा कि सबसे बड़ा हमारे गांव में मोक्षगामी जी कौन है, मोक्षगामी जी कौन? सबने क्या कहा? कपिल। जबकि कौन था? पिंगल। तो सबने तो सोचा कपिल का नाम, भगवान ने कहा पिंगल है। पिंगल क्योंकि हृदय से सरल है और इसने हृदय से क्षमा याचना की है और पूरी दिल से वो उसी दिन अपने आप को उसने शुद्ध कर लिया था। लेकिन कपिल इससे नाता नहीं जोड़ रहा। परिणाम क्या हुआ बंधुओं? कपिल ने पूछा भगवान मैं मोक्ष कब जाऊंगा? कि तू जाएगा, तेरा घोड़ा जिस वृक्ष के नीचे मिलेगा उसके अनुसार तू जाएगा। गया और देखा हर दिन घोड़ा पलाश वृक्ष के नीचे रहता था। आज वो घोड़ा कहाँ है? आम्र वृक्ष के नीचे। तुरंत आया भगवान के पास, बनते इस आम्र वृक्ष के पत्ते कितने? 12 लाख। कि 12 लाख भव और करने पड़ेंगे। आपने देखा एक सरलता व्यक्ति को कहाँ तक ले जाती, मोक्ष की ओर, और बड़ी बड़ी तपस्या पीछे रह जाती है। इसलिए क्षमा का हृदय हार्ट है, You know, from the responses, what I remember, and I think all of us will also remember, is that बधू बगड़े तो चाल से मन न पकड़ो. So it's always about the bhav. Now can we go to the next question? Can we all have our phones out again, please? You should be able to refresh your screen. There are volunteers around who would help you if you can't. The next question is, in a situation where two principles of Jainism conflict, for example, ahimsa versus truthfulness, how should one decide what to prioritize? એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં જૈન ધર્મ બે સિદ્ધાંતોમાંથી એક ફોલો કરવું પડે ત્યારે निर्णय કેવી રીતે લેવાનો? ऐसी स्थिति में जहां जैन धर्म के दो सिद्धांत में से एक फॉलो करना पड़े तो कैसे निर्णय लेना चाहिए? So a very simple example for this is if you see someone commit a murder and the police asks you, have you seen the person doing it? Should we say yes? If we say yes, he gets death penalty. If we say no, we are lying. So in such a situation, how would you respond? A, follow the principle that gives best short-term benefits. B, seek guidance from a spiritual seeker or scripture. C, choose the principle based on your personal understanding. And D, choose the principle that the society follows. Your answers on the mobile phone, please. I think there are many situations that we can relate to this question. There are lots of conflicting situations and we don't know which step to take. So it's a perfect opportunity for us to understand better from all the spiritual seekers. Can we see the responses? So 67% have said B, seek guidance from a spiritual seeker or scripture. And a follow-up question is, if we have to make a spontaneous decision, उसी समय अगर decision लेना पड़े, तो हम क्या करें?
So in no correct answer, it's all about our perspectives. So over to you. इसका संबंध पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। जहाँ हमारा धर्म पलता हो, धर्म ट्रेडिशनल नहीं, धर्म मेरी आत्मा, वो डिसाइड है। एक एग्जांपल आता है मुनि महाराज का, कि मुनि महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ से एक गाय निकली घबराती है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मुनि महाराज ने, और जैसे ही गाय निकली वो खड़े हो गए। पीछे से कसाई आया, उसको पकड़ने वाला मारने वाला ले आ रहा था, उसको कोई नहीं देखा, गाय चली गई झाड़ियों में, कोई नहीं देखा, तो उसने मुनिदास से पूछ लिया, महाराज से कोई गाय देखी क्या? अब वो मुनिदास क्या बोलेंगे? हाँ बोलते हैं तो हिंसा हो, ना बोलते हैं सत्य महाव्रत में दोष। तो महाव्रत अपना अनुव्रत अपन तो कैसे बोल देते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल असत्य बोलने का साधन अपने हाथ में है, जिससे बहुत झूठ बोला जाता है। चैन सी का दिलवा बहुत झूठ बोला जाता है। खैर वो दूसरा विषय है। और उस समय क्या करेंगे महाराज जी, या क्या बोलेंगे? ना मौन रहेंगे तो भी गड़बड़, आंसर तो देना है। ना बोलेंगे नहीं, ना बोलेंगे तो सत्य महाव्रत तो दोष लग जाएगा, उनका महाव्रत छूट जाएगा। उन्होंने पर्सनली अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने क्या कहा, जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई गाय नहीं। क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को देखकर भाप लिया, गाय निकली खड़े हो गए, उन्होंने आंसर दिया। तो कुछ कंडीशन अलग करते वो, उन्होंने सबको बचाना है, हो सकता है बैठ जाते, कुछ भी करते, स्थान चेंज कर देते, एनीथिंग, जैसी परिस्थिति आ सके वैसे, बस जैसी परिस्थिति हो। इसलिए पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर जाके मेरे को धर्म को बचाना है, जीव को बचाना, एनी कंडीशन को देखते हुए रहना है। हो सकता है फिर वो सामने वाले के कसाई और बड़े हैं, No, Singapore में possible है। No comments. Yeah, you cannot force me to answer, right? Am I right? लेकिन वो इंडिया की बात है ना, इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि आप विचार का आपको आंसर करना पड़ेगा। इंडिया सिंगापुर नहीं, हो सकता है कि हमारे ऐसे नेगेटिव आंसर से उसकी कसाई बढ़ के वो हम पे अटैक कर दे, उसको अपनी कसाई निकाल दे कहीं ना कहीं, उसने जीव को नहीं मारा तो हम पे अटैक कर सकता है मे बी। इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोर्ट में ना बोले तो चल सकता है, यू राइट टू बी साइड, लेकिन लोक व्यवहार में तो नहीं चलता। इस पर यहाँ एक छोटी सी कहानी और चलती है इसकी, कि एक राजा था, उसने डिक्लेयर किया कि जो भी राजा बनना चाहता है, वो रिटायर हो रहा था, तो उसने कहा कि जो भी राजा बनना चाहता है राजा दरबार में अमुक पर्टिकुलर डे में वो आए। कई लोग आए, तो राजा ने उनको पहले किया कि तुम ऐसी जगह जाकर सुई में धागा पिरो जहाँ पर कोई देख नहीं रहा। सभी ने अपने अपनी बुद्धि लगाई, कोई समुद्र में नीचे जाकर के सुई में धागा पिरो है, कोई आकाश में जाकर किया, पर्वत की चोटी पर जाकर किया, किसी ने गुफा में जाकर किया। ऐसा आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उस स्टोरी में। तो अब फिर राज दरबार में सब बुलाया गया जिन्होंने भी परीक्षा में भाग लिया था, तो सब ने अपनी अपनी बात बताई थी कि कहीं जाकर के कैसी सुनसान जगह में घर में दरवाजे बंद करके, आकाश में जाकर, पहाड़ी पर जाकर, गुफा में जाकर, समुद्र के नीचे जाकर जाकर। और एक व्यक्ति बोला कि महाराज एक बड़ा धर्म संकट है, ये क्या है कि मैंने कहीं जाकर धागा नहीं डाला। क्यों? कि जहां पर भी मैं धागा डालने जाता हूँ, मैं तो देख रहा था ना, मैं तो देख रहा था। तो इसलिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राजा उसी को बनाया गया जिसने कहा कि खुद तो समझ रहा है, तो इसीलिए आंसर की होना चाहिए कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर जो शब्द बोला गया वहाँ शास्त्र काम नहीं आएगा, प्रिंसिपल भी काम में नहीं आएगा। वहाँ तो जो व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग है उसकी कि इस सिचुएशन को कैसे किस धर्म में लगाया जाए,
हमारा नहीं काम बात ऐसे क्यों? तो आपने जो बताया ना, आपने जहाँ जो सही है वो, तो एक गाथा याद आती है आत्मसंगी, सब साथ में गाएंगे। ज्या ज्या जे जे योग छे तहाँ समझ होते, त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जने. So let me conclude with this. There cannot be a fixed answer because we don't know what situation you are. But definitely, see, most of them seek guidance from a spiritual speaker or a scripture. But what Punita Ben said was absolutely right. In all practical situations, it is not possible that you will call me or someone and ask, and even if you call me, I will not be available at that time. So, the best possible answer is what everybody agreed: choose the principle based on your personal understanding. But I would add one thing to it: कि your understanding, your personal understanding should be in alignment with the spiritual teacher, with the Bhagwan. वो कैसे करेंगे हम सब? उसका एक उपाय है, सत्संग करेंगे. क्योंकि हम सब सत्संग सुनते हैं, प्रवचन को सुनते जाते हैं, तो every time we are listening to the प्रवचन, your belief systems are getting aligned with God. Yes or no? Yes. So इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम सबको, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, इसलिए कंक्लूड करना ही पड़ेगा. तो एटलीस्ट इतना कंक्लूजन हम यहाँ से लेके जाए कि निरंतर सत्संग करो, निरंतर सामायिक करो, निरंतर प्रतिक्रमण करो. अगर ये इसकी जो निरंतरता रहेगी तो आप इतने विवेकी बनोगे कि आप सही करोगे जो योग्य है. हाँ जी, हाँ जी. અહિંસા और સત્ય બેમાંથી તમારે ચૂઝ કરવું તો કોને કરવું? અમારા હિસાબે અહિંસા અને સત્ય બંને એક જ છે, એ જુદા નથી. કેમ કે 5 મહાવ્રતમાં આમ કહ્યું છે, એક મહાવ્રત તૂટે તો બધા મહાવ્રત તૂટે. પહેલી વાત છે અહિંસાનો અર્થ છે હિંસા ન કરવી. અને જો સૂક્ષ્મ અર્થ આપણે જાણીએ, રાગ દ્વેષ મુક્ત ચેતના એને કહેવાય અહિંસા. और अहिंसक जे भी चेतना राग द्वेष થી મુક્ત હોય એ માણસ સત્ય જ બોલશે, અસત્ય બોલશે નહીં. તો આ બંને એક જ છે, જુદા નથી મારી દૃષ્ટિમાં અને આ ભગવાનની દૃષ્ટિમાં. અને એ બધા અત્યારે આપણે ક્લિયર પણ કરી દીધું. वेरी नाइस. ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर इतना सुंदर ये बात बताया है. सी वी आर सीइंग अनेकांतवाद, हाउ डिफरेंट एंगल्स, एंड ईच एंड एवरी वन seems so right, so perfect from their perspective. What he said was the actual practical application. कि ultimately I have to save a life. So what will he do? And he will do in such a way that he will balance both. So we are seeing, we have taken the best cream from and the different viewpoints from all the speakers, and I would say we are all one. આજે મને ગુજરાતી બોલવાનો મોકો મળ્યો, બહુ સારું છે. અને મને હિન્દી બોલવાનું. આટલા સુધી હું હિન્દી સમાજમાં હતી તો હિન્દી જ બોલતી હતી. આ પહેલો મોકો છે કે હું અહીંયા બોલું છું. અને અમેરિકામાં કોઈ લેક્ચર મારે ગુજરાતીમાં થાય, આજે વખતે પહેલી વાર થયું. બહુ મજા આવી, ગમ્યું. Thank you. So, I just want to add a youth perspective on this. If, for example, ઘરે મમ્મી હે કે વાઈફ હે ખાવાનું બનાવ્યું, મહેનતથી ખાવાનું બનાવ્યું અને જમવામાં નમક વધારે છે, તો કહેશું તો ખોટું લાગશે, નહીં કહે તો આપણે નહીં ભાવે, તો શું કહેવાનું? સો ધીસ ઇઝ શીખી જશે, થોડા ટાઈમ. So my understanding of this is આપણે કહેવાનું the food is out of the world. હવે out of the world ના બે meaning હોય. એમને જે સમજ હોય એ સમજી શકે, આપણે જે સમજ હોય આપણે સમજી. तो मैंने जो बताया वो अभी उसने अप्लाई कर दिया. With this, I hope you all had fun. It was interactive and there's lots of learnings to take back. Now fun तो we definitely had, yes or no? Yes. And fun के उपरांत हम बोल सकते हैं कि you know what? See, when you go to a restaurant, there will be different cuisines, right? And you always try to change. I want to taste this also. I want to taste this also. आज आपको क्या होगा? आपको different cuisines एक साथ मिल गई, हाँ?
So if I made any mistakes while delivering the questions or the answers, Michami Dugram, and I'll hand it over to Sandeep. Yeah, so it's an excellent opportunity again. So what I like to add on to what Movil said, right? The food is out of the world, but we all have to go in our inner world. Wow. Very good. So based on what Raju bhai and all the speakers have also given the Bodhvachan today, there's hardly anything much for me to conclude here, but I'll just like to share some couple of lines here from the Bhav of Shama. क्षमा से निखरेगी आत्मा, दर्पण सा साफ होगा मन, वही सच्चा विजय होगा जहां क्षमा का वो अद्भुत रण. So with this we'll conclude the fireside chat and the interaction with the learned speakers, and we'll now move to one bhajan and then vote of thanks from. Yes. मैत्री भाव के पवित्र झरने अंतर मन में बहा करे, मंगल हो इस सकल विश्व का यही भावना नित्य रहे. गुण से भरे गुणी जन देखो, मनवा मेरा नृत्य करे, मनवा मेरा नृत्य करे. इन संतों के चरण कमल में मुझ जीवन का अर्घ रहे. दीन क्रूर और धर्म विहीना, देखो दिल में दर्द बहे. करुणा से भीगे नयनों से अश्रु के शुभ स्तोत्र बहे. पथ भूले जीवन पथिकों को पथ दर्शाने खड़ा रहूं, पथ दर्शाने खड़ा रहूं. करे उपेक्षा जो इस पथ की, तो भी समता चित्त धरूं. वीर प्रभु की धर्म भावना पुर में सब मानव लाए. वैर जहर के पाप त्याग कर मंगल गीत सदा गाए. तन मन धन से कर पाऊं तो भला जगत का करता रहूं, भला जगत का करता रहूं. कोई उदास न रोगी हो यहाँ, अश्रु मिटाने खड़ा रहूं. शुभ मंगल की करूं प्रार्थना, सत्कर्मों का बंद करूं. महावीर की मैत्री करुणा के पथ पर चलता ही रहूं. मैत्री भाव के पवित्र झरने अंतर मन में बहा करे. मंगल हो इस सकल विश्व का यही भावना नित्य रहे, यही भावना नित्य रहे. મૈત્રી ભાવનો પવિત્ર ચરણો મુજ હૈયામાં વયા કરે.
conclude this session, I'd like to just take a few minutes. Firstly, thank you so much, Samni ji. Thank you so much, Jayantilal ji. Thank you so much, Sanjay ji, for spending beautiful time with us. And thank you